we are studying series, and in this series, till now, we studied some properties of convergence, some necessary conditions. We just saw some series, and the important thing that we are doing in this part, in this unit, is the tests which tell us about the convergence of a series. And we, for example, the thing that there are some things that we have done. We did p-test, then we had uh, geometric series, geometric series, its convergence, its test to check whether it when it converges. Then generally we had comparison tests. These were two comparison tests. There were two comparison tests. Then after comparison tests, we had ratio test. Then we had root test. But all these tests, comparison test and root test, they are concerned about the all these tests are concerned about the absolute convergence of the series. Absolute convergence of the series. And we know that there are series which may not be absolutely convergent, but they are convergent, and such series are known as conditionally convergent series. And therefore, it is important to have at least one test for such a series which is conditionally convergent. And today we are going to work on that test, and the test that is known that sometimes we call it alternating series test, or this test is also known as Leibniz test also. And but what is a alternating series? What is the alternating series? First, we need to know alternating series. Here is a definition for the alternating series. The series summation xn is said to be alternating if the terms, ये देखिए सीरीज की टर्म xn है, तो अगर इस टर्म को मैं -1 टू पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूं, तो अगर ये टर्म्स, इफ ऑल दीज टर्म्स आर पॉजिटिव या नेगेटिव, दे मतलब दे मस्ट हैव द सेम साइन. ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो. -1 टू पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके ये टर्म्स या तो पॉजिटिव हो जाए सारी, या सारी की सारी नेगेटिव हो जाए, तो देन वी से दैट दिस सीरीज इज अल्टरनेटिंग सीरीज. Here is an example. Look at this series. Here we have xn. क्या है यहाँ पर? xn है आपके पास -1 to power n plus 1 upon n. And to check whether this is alternating series or not, what we have to do, look at the definition, we have to multiply each term with -1 to power n plus 1. And let us multiply it with -1 to power n plus 1 into xn, and this comes out to be -1 to power n plus 1. We have already -1 to power n plus 1 here upon n. So when you multiply -1 to power n plus 1 with itself, you get -1 square to power n plus 1. So -1 square will be 1, and 1 to power anything will be 1. So you are left with 1 upon n, and you see that 1 by n is always positive whatever n you take. So this follows that, and this is all terms are positive, hence by definition of alternating series we see that this series summation n from 1 to infinity -1 to power n plus 1 upon n is alternating series. In this way you can see other alternating series also. So
That's it. Now there is a observation. For example, if you have a series which you know that it is an alternating series, and then we, if that series is alternating series, then we know that uh, minus 1 to power n plus 1 xn is positive or is negative. So let us denote this. If it is positive, let us denote this number by Zn, and we may write it as minus 1 to power n plus 1 into xn. And from here, if you multiply both sides by minus 1 to power n plus 1, you can write this xn to be equal to, because on the right hand side minus 1 to power n plus 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो दो बार हो जाएगा, तो दो बार मल्टीप्लिकेशन से आपके पास राइट हैंड साइड का माइनस वन टू पावर एन खत्म हो जाएगा. यू विल हैव ओनली माइनस वन टू पावर एन लेफ्ट विद जेड टू जेड एन से. ठीक है, सो यू कैन राइट इन दिस टर्म व्हेन इट इज पॉजिटिव. ओके, सो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. तो उस वक्त में देन आपके पास सीरीज लिखने का क्या तरीका होगा? यू मे रिप्लेस एक्स एन देन बाई माइनस वन टू पावर n प्लस वन जेड एन, सो दैट आपको अंडरस्टूड हो जाएगा ये अल्टरनेटिंग सीरीज है. सो लेकिन फिर अगर आपके पास ये टर्म्स नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव में आप क्या करेंगे? नेगेटिव में आप पावर n रख लीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन कैसे करना है. ठीक है, वो बाद में देख लेंगे. सो हियर इज अ टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट. जब आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज हो तो उस सीरीज की कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं? जैसे ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, वी विल सी कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है इसी टेस्ट से. बट पहले टेस्ट क्या है, पहले उसको देख लेते हैं. व्हाट इज द टेस्ट? टेस्ट सेज दैट सपोज you have z, let zn be a strictly decreasing sequence of positive numbers. zn की क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए जो पॉजिटिव नंबर्स की. पॉजिटिव नंबर्स मीन्स जीरो वालों को डिस्कार्ड कर दो, वी डोंट हैव द जीरो नंबर्स. सच दैट वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की जो लिमिट है वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए और वो कन्वर्ज करनी चाहिए जीरो को. ऑब्वियसली वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव नंबर्स की, तो वो बाउंडेड ही होगी, क्योंकि z1 is greater than z2 is greater than z3 is greater than, everything is greater than or equal to zero. तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है. तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से this is always a convergent sequence, but the limit of this sequence is zero. तो दो चीजें रिक्वायर्ड है इसमें अल्टरनेटिंग सीरीज में, जो आप जिस पर आप अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगा सकते हो. एक कि जेड की जो सीक्वेंस है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, और दूसरा उसकी लिमिट जीरो होनी चाहिए. ओनली देन द अल्टरनेटिंग सीरीज, उस वक्त जब आपके पास जेड एन है तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज बन जाएगी आपके पास माइनस वन टू पावर एन जेड एन जो होगी, देन दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. आपके पास let's first apply this test to this given series in example 2. एग्जाम्पल 2 में देखिएगा, एग्जाम्पल 2 में अब आप देखिएगा, एग्जाम्पल 2 में आपके पास Zn आपके पास आता है 1 बाई एन, माइनस वन टू पावर एन को अलग, एन प्लस वन को अलग से रख लो. एंड यू सी 1 बाई एन सीक्वेंस जो है, 1 बाई एन के सीक्वेंस का बिहेवियर हमने अब स्टडी किया है. तो 1 बाई एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. दिस इज डिक्रीजिंग, this is decreasing, and also each term is greater than, strictly greater than zero. And further इसकी लिमिट भी हमें मालूम है. Further we know that 1 by n goes to zero. So what's happening, this Zn, the data on Zn is something that is what we needed for the alternating series test. Alternating series में भी Zn की sequence strictly decreasing होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स की होनी चाहिए और लिमिट जीरो होनी चाहिए. तो हेंस बाय अल्टरनेटिंग सीरीज डायरेक्टली, बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, it follows that this alternating series minus 1 to power
n Zn is convergent. तो ये n plus 1 है, तो you may multiply again by minus 1 plus n. This is convergent. तो अगर ये convergent है तो again this is a finite real number. When we say that a series is convergent, then this means that this number is a finite real number, minus 1 to power n Zn uh, is finite real number. तो फाइनाइट रियल नंबर को आप किसी और रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी फाइनाइट रियल नंबर रहेगा, तो इसको मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो व्हाट आई विल गेट माइनस 1 टू पावर n प्लस 1. Zn क्या है? 1 by n summation. This is again a finite real number, that means this is also convergent. This is also convergent. Is it clear? Sir. Okay. Okay. So now let's look at the proof of this theorem, this test. You have the information. Keep in mind your terms of this series Zn. The Zns are strictly decreasing, and their limit is 0. So let's look at some of the partial sums of this series. And first we will look the partial sum with even indices S2n. So S2n को आप कैसे लिख सकते हैं? S2n का मतलब है up to 2n तक आपको जाना है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, S2n is a finite sum, तो मैं इसमें इसकी वो कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. I can write it as, क्योंकि S2n क्या होना चाहिए? S2n is actually Z1, फिर अल्टरनेटिंग सीरीज है तो माइनस 1 टू पावर n प्लस 1 है ना, माइनस 1 टू पावर, it has to be minus 1 to power n plus 1. Okay, I will correct it. Just a minute. It is not minus 1 to power n, it is minus 1 to power n plus 1. It is minus 1 to power n plus 1. Keep in mind this is minus 1 to power n plus 1, so that आपके पास S1 आ जाए, आपके Z1 आ जाए, फिर Z2 माइनस में आ जाए, फिर Z3 आ जाए, फिर Z4 आ जाए, इस तरह से, ताकि इवन इंडिसेस वाले के साथ. तो इस तरह से आपके पास टर्म्स चलती जाएंगी. तो आप क्या कर सकते हैं, यू मे राइट Z1 माइनस Z2 एक साथ में, फिर Z3 माइनस Z4 एक साथ में, जैसे इस टर्म नीचे लिखा हुआ है Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4. तो अब इससे क्या है, हमारे पास Zns की इंफॉर्मेशन है आपके पास. यू नो दैट के सीक्वेंस ऑफ Zns जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. दैट मीन्स Z1 इज ग्रेटर देन Z2. तो Z1 इज ग्रेटर देन Z2 मीन्स आपके पास ये जो डिफरेंस है Z1 माइनस Z2 का, तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है. फिर इसी तरह आपके पास Z3 is greater than Z4, तो therefore this difference of Z3 minus Z4 is strictly greater than 0, and in this way every term in the bracket is strictly positive. So this S2n in this way is a sum of positive numbers, brackets में डाल के, this is a sum of positive numbers. तो ये strictly greater than 0 होगा खुद भी sum. ठीक है. और दूसरी बात कि जब S2n प्लस 1 की नेक्स्ट टर्म आप देखोगे, जैसे S2n से नेक्स्ट टर्म जो आपके पास होगी S2n प्लस 1 होगा, या सिर्फ इवन इंडिसेस की जो सीक्वेंस है आपके पास, तो S2n प्लस 1 ये वाली टर्म आप देखोगे, तो वो वाली टर्म में एक और पॉजिटिव टर्म ऐड हो जाएगी. तो उस वाली टर्म में एक और पॉजिटिव टर्म ऐड हो जाएगी, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यू विल हैव व्हाट यू हैव S2, इट विल बी समथिंग S2n तक, तो ये आ जाएगा, तो उसमें एक और टर्म ऐड हो जाएगी, और एक और कोई पॉजिटिव टर्म ऐड हो जाएगी उसमें. यू विल हैव अ पॉजिटिव नंबर.
ठीक है, तो उस इसका मतलब यू विल हैव दिस s2n+1 strictly greater than s2n. So what it means then, this thing means that this means that this sequence s2n is increasing. This sequence is increasing. Is it okay? Yes, sir. Is it clear to you why it's increasing? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, okay. So एक चीज हो गई, ये इंक्रीजिंग है. नाउ लेट्स लुक, इसी s2n को वी कैन राइट, यहाँ देखिए s2n की एक्सप्रेशन ये फर्स्ट लाइन में. अब इसी s2n को मैं इस तरह ब्रैकेट्स को ही चेंज करना है ना, कि ब्रैकेट्स को मैं z1 को अलग से रख लेता हूँ, फिर z2 और z3 में ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करूंगा तो z1 माइनस हो जाएगा, तो z2 माइनस z3, z4 माइनस z4. तो इन शॉर्ट आपके पास s2 जो n है, आई कैन राइट इट टू बी z1 माइनस समथिंग, कुछ भी है यहाँ पर. z1 इज अ पॉजिटिव नंबर. तो अब ये जो डिफरेंस है z1 माइनस सम नंबर, तो ये डिफरेंस हैज टू बी लेस देन z1 ना, क्योंकि z1 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो z1 में से कुछ पार्ट निकाला जा रहा है, तो जो भी पीछे बचेगा that has to be smaller than z1. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. So that means this partial sum s2n is less than or equal to z1, whatever n you choose. So what it means? It means that this sequence of partial sums, this particular sequence of partial sums s2n increasing है और ये bounded भी है, is increasing and bounded. So we can apply now the monotone convergence theorem. Hence, by monotone convergence theorem, it follows that this sequence s2n is convergent and it converges to, obviously it is convergent to, so it इसका कोई limit होगा, and we assume here that let that limit be s. It converges to some number s. Is it okay? बट अभी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, अभी सारी, क्योंकि आपको सीरीज को कन्वर्जेंट करने के लिए आपको पार्शियल सम्स की सीक्वेंस को कन्वर्जेंट शो करना, बट अभी पार्शियल सम्स की पूरी सीक्वेंस को नहीं हमने शो किया, अभी हमने सिर्फ पार्शियल सम्स की एक सब सीक्वेंस को कन्वर्जेंट शो किया है, से एक सब सीक्वेंस को कन्वर्जेंट शो किया है. ठीक है, तो उससे हमें क्या मिला, उससे हमें एस भी मिल गया. ठीक है, एक एस. अब हम क्या क्लेम करेंगे, हम क्लेम करेंगे जो टोटल सीक्वेंस है आपके पास पार्शियल सम्स की, वो भी कन्वर्जेंट है और उस सीक्वेंस की लिमिट भी एस है. तो कन्वर्जेंस को शो करने के लिए एज यूजुअल लेट अस बिगिन विद सम एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर and we will apply the definition of convergence of s, this subsequence of s2n. इसकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाते हैं, तो एक और कन्वर्जेंस दी हुई है हमारे पास. एक और कन्वर्जेंस क्या दी है हमारे पास, एक और कन्वर्जेंस हमारे पास दी है जेडेंस की कन्वर्जेंस दी है, कि जेडेंस की जो सीक्वेंस है ये भी कन्वर्जेंट है एंड इट कन्वर्जेस टू जीरो. So by definition of convergence, whenever we have an epsilon positive number, there exists a number k in n, this is natural numbers, such that s2n minus s will be less than epsilon half, because s2n converges to s, and zns कन्वर्ज कर रहे हैं, तो zns की जो zn 2n+1 सब सीक्वेंस है ये भी कन्वर्जेंट होगी, तो उस सब सीक्वेंस के लिए भी वो भी जीरो को कन्वर्ज करेगी, तो यू विल हैव mod of z2n+1 is also less than or equal to epsilon by 2. Okay, you may take it to be strictly less than, but if I have written here as less than or equal to, that will not make any impact, that will not go wrong. So ये फॉलो करता है आपके पास कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से. And now let us look at this difference, क्योंकि s2n minus s का जो डिफरेंस है ये तो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, वी नो दिस थिंग.
तो इसी तरह से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एस एन माइनस एस का जो डिफरेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू सम के। तो अब n को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, k से बड़ा n या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। तो इवन वाले के लिए तो हमारे पास ये चीज है, तो ऑड वाले के लिए अब चेक करेंगे कि जब n ऑड है तो ऑड इंडिसेस के लिए ये चीज क्या होगी। लेट अस चेक दिस थिंग। तो s2n plus 1 minus s is what is s2n? S2n, you know, s2n is z1 minus z2 plus z3 minus so on so on. It has to be a minus plus z. It has to be, let me okay, what's it, z2n minus 1 minus z2n होना चाहिए। तो s2n plus 1 में क्या होगा, s2n1 में एक एक्स्ट्रा टर्म होगी, है ना, z2 plus z3 minus so on plus z2n minus 1 minus z2n plus z2n plus 1, ये आ जाएगा। या दिस थिंग इज नथिंग बट दिस थिंग इज s2n plus z2n plus 1। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, s2n plus 1 को मैंने लिखा है ब्रेक करके s2n plus z2n plus 1 minus s as it is। Now I have to apply triangle inequality। triangle inequality apply करो, triangle inequality apply करोगे तो s2n, s को क्या है, s को s2n के साथ रखो तो z2n plus 1 को अलग से रखो, तो triangle inequality से it will be less than or equal to mod of s2n minus s plus mod of z2n plus 1। but इसके लिए we have the estimate, this first term s2n minus s के लिए we have estimate when we choose n to be greater than or equal to k। we know from this previous here that this term is less than epsilon by 2, and z2n plus 1 के लिए भी है जी हमारे पास, this is also less than or equal to epsilon by 2। so this thing will be less than epsilon by 2, and this the mod of z2n is also less than epsilon by 2, and sum is epsilon, hence what you get, you get that s2n plus 1 minus s is less than epsilon। एंड आल्सो हमने पीछे ये भी देखा कि s2n माइनस s भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, तो ऑब्वियसली वो लेस देन एप्सिलॉन भी है। तो सो वट एवर n यू चेज, उसकी ऑड और इवन इंडिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों की दोनों ये डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम s जो हैं दे आर लेस देन एप्सिलॉन। or we can say in this way that every partial sum and odd number of terms is also within epsilon of s if n is large enough, and hence it implies that whatever n you choose, Sn minus s is less than epsilon for large and greater than equal to k। कहने का मतलब है for large n, and this implies that limit of this Sn is equal to s, and this means that this sequence of partial sums is convergent, and the sequence of partial sums is convergent implies the series is convergent। इस सीरीज के ये partial sums हैं, तो इस सीरीज थी आपके पास ये summation minus 1 to power n plus 1 zn, and hence this series is convergent। is it okay? Is it Yes, clear? sir. Yes, Yes, sir. sir. Any question till now? Sir, Yes, hello. हाँ जी बोलो। Sir, s of 2n plus 2 minus s of 2n greater than 0 कैसे होगा सर? सर पीछे आपने कराया जो s of 2n प्लस 2। नहीं, दोबारा से पीछे, एक सेकंड पीछे मैंने रिमूव कर दिया होगा ना, बताओ मुझे क्या था। s of 2n प्लस 2 प्लस 2, ये ग्रेटर देन कैसे होगा जीर? ये ग्रेटर देन अच्छा, s of माइनस 2n से। 2n से, तो देखिए ना s of 2n से जब इसको किया था हमने,
तो मैंने इसको इस तरीके पहले देखिए, मैं वापस इधर जाता हूँ, लुक एट दिस। S2n लिखने का क्या तरीका है, देखिए यहाँ मैंने इसको कैसे लिखा है, ब्रैकेट्स में करके लिखा है ना। तो ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है Z2 Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 जो है दिस पॉजिटिव नंबर, क्योंकि आपकी जो Zn की सीक्वेंस है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो दैट Z1 ग्रेटर देन Z2 है, तो Z1 माइनस Z2 पॉजिटिव है। इसी तरह से फिर प्लस करके ब्रैकेट के अंदर एक और नंबर है वो भी पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स ये जो सम है ब्रैकेट्स के, ये सारा जो सम है S2n, दिस हैज बीन written in such a way that it is the sum of positive numbers। ठीक है, तो जब सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है तो सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज ग्रेटर देन 0। दूसरी चीज, अब जब मैं S2n+2 को देखता हूं, तो S2n+2 क्या है, S2n+2 में आपके पास आ जाएगा S2n, 2n तक आएगा, प्लस कुछ और टर्म्स आ जाएंगी दो। ठीक है, एक टर्म आपके पास आ जाएगी Z2n+1, एक टर्म आ जाएगी माइनस Z2n+2। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 2n टर्म्स का सम प्लस उसके बाद कितनी टर्म्स बचती हैं, दो और टर्म्स बचती हैं, तो वो है Z2n+1 माइनस Z2n+2। अब ये नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है, S2n जो है दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर। फिर अगेन कि Z2n+1 जो होगा ये ग्रेटर देन Z2n+2 है, क्योंकि Zn डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये नंबर भी ब्रैकेट के अंदर जो है ये भी पॉजिटिव नंबर है। इज इट क्लियर? यस सर। तो पॉजिटिव नंबर है। तो अब मैं S2n को अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करके मेरे पास S2n क्या बन जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, मैजिक कलर, ये। अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूं तो आई विल हैव S2n+2 माइनस S2n, है ना। तो राइट हैंड साइड क्या बचेगा आपके पास, राइट हैंड साइड में आपके पास जो नंबर है दैट इज Z2n+1 माइनस Z2n+2, एंड दिस नंबर वी नो दैट दिस नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। इज इट यस ओके? सर। अब क्लियर है यस कि सर। ये डिफरेंस कैसे पॉजिटिव? ओके, so okay, uh, so we have finally this example, another example, where we are going to apply this alternating series test to check whether the given series is convergent or not. We have the given series क्या है आपके पास, we have this given series summation। यूजुअली summation जो होता है वो n from 1 to infinity होता है या n from 0, बट यहाँ वो अंडरस्टूड है इसलिए मैंने summation ही लिखा डायरेक्ट, -1 to power n+1 upon 210। ठीक है, तो पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ, -1 to power n+1 Zn के साथ। तो वी गेट Zn क्या है, Zn आपके पास 1/√n है। तो देखिए अब Zn की पावर, देन क्लियरली लुक एट दिस, Z1 इज 1 and Z2 is 1/√2, and clearly Z1 is greater than Z2. So what is Z3? Z3 is 1/√3, and clearly this is less than 1/2. तो इस तरह से आप चेक करते जाइएगा, you will have Zn to be greater than Zn+1. So what it means? It means that this sequence Zn is decreasing. Is it okay? And this is strictly decreasing. तो strictly decreasing है, and also हर एक टर्म जो है वो पॉजिटिव है, कोई भी टर्म जीरो नहीं है जी। दिस इज अ पॉजिटिव टर्म। इज इट ओके? यस Yes, सर। sir. आल्सो व्हाट इज द लिमिट? ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ना, यू नो दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और इसकी लिमिट कितनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n कितना होता है,
0. इट हैज टू बी 0. सो आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट का सारा का सारा डाटा आ गया, आपके पास सीक्वेंस जेड एन डिक्रीजिंग भी है, पॉजिटिव टर्म्स भी हैं, और लिमिट 0 भी है. इज इट ओके? Yes, sir. तो अब आपको क्या करना है, आपको यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, आपको बस कोई टेस्ट अप्लाई करना है. तो आपको उस टेस्ट के हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करवाना है. तो हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो गए तो देन डायरेक्टली वी कैन से दैट directly by alternating series test this series given summation minus 1 to power n plus 1 upon root n is convergent. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है. तो इसी तरह से you can check out this series also. This series will also be is also convergent. तो देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज में इंटरेस्टिंग क्या है कि अल्टरनेटिंग सीरीज में आपको पार्शियल सम्स, अल्टरनेटिंग सीरीज सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज अल्टरनेटिंग होनी चाहिए. अगर सीरीज अल्टरनेटिंग नहीं है तो देन यू मे नॉट बी एबल टू अप्लाई दिस टेस्ट. ये टेस्ट अप्लाई होगा जब सीरीज अल्टरनेटिंग है. अल्टरनेटिंग सीरीज का एक सिंपल सा फंडा है कि आपके पास जो साइन है टर्म्स का वो अल्टरनेटिंग साइन होना चाहिए. अगर माइनस है तो फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से होने चाहिए. ठीक है. तो उसमें आपको सिर्फ जो सीक्वेंस है टर्म्स की, उस सीक्वेंस को चेक करना है. सबसे पहले वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस होनी चाहिए, और वो लिमिट 0 होनी चाहिए. बस सिंपल सा, और ये बड़ा आसान टेस्ट है, इसको चेक करना है. ठीक है जी. डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन. सर अल्टरनेटिंग सीरीज हमें ये नहीं बताती कि कहाँ पे कन्वर्ज करेगी सीरीज, लिमिट किस लिमिट पे. हाँ, नहीं नहीं, वो लिमिट नहीं बताएगी अभी तक. इंडीड कोई भी जो भी टेस्ट हमने किए हैं ना, एक्सेप्ट आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज में हम लिमिट फाइंड करते हैं, तो ना तो पी टेस्ट में, किसी भी टेस्ट में हमें कोई लिमिट फाइंड करने का कोई मेथड नहीं है जी. ये सारे जितने भी टेस्ट हैं दे ओनली से, टेस्ट जितने भी हमने किए हैं दे ओनली टेल अस अबाउट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. ठीक है. इसके अलावा कुछ नहीं बता. ये दे डू नॉट से कि वो कन्वर्ज किसको कन्वर्ज करती है. लिमिट नहीं फाइंड करने में हमारी मदद करते. लिमिट फाइंड करना इज अ डिफरेंट थिंग. उसके लिए डिफरेंट मेथड्स आपको अप्लाई करने पड़ सकते हैं. तो बट हाँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है. वंस यू नो कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है तो नेक्स्ट स्टेप उसके बाद होता है उसकी लिमिट फाइंड करना. बट इंपॉर्टेंट दैट मीन्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको सीरीज को चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं. तो दैट इज नॉट, वो बाद की बात है कि उसकी लिमिट फाइंड करने के क्या मेथड्स हैं. यू कैन स्टडी दैट लेटर ऑन. ओके. यस सर. एनी अदर क्वेश्चन? सर कहीं पे हम -1 की पावर n+1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे -1 की पावर n-1 भी लिखा हुआ है, सर उसका क्या. नहीं, मोस्टली क्या होता है ना, मोस्टली अल्टरनेटिंग सीरीज इस फॉर्म की ही होगी आपके पास, -1 टू पावर n zn. ठीक है. तो उससे अगर मान लो किसी जगह पर आपके पास सीरीज इस तरह से है, -1 टू पावर n अपॉन n है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि आप क्या करो, आप इस सीरीज को अ, इससे रिप्लेस कर सकते हैं ना. यू मे राइट इट एज, आप इसको -1 से एक बार मल्टीप्लाई कर लो. क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट होगी ना, तो -1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इवन के डाइवर्जेंट भी होगे तो -1 मल्टीप्लाई करने से कुछ भी नहीं होगा. -1 से मल्टीप्लाई कर दो अगर आप इसको, -1 टू पावर n हो जाएगा n. तो सो दैट आप इसको लिख सको -1 टू पावर n+1 अपॉन n. ठीक है. तो अगर n+1 तो भी नहीं अगर आपने करना, तो आप सीधा डायरेक्ट ये देख लो इस तरह से. बट यू से इवन इफ आपके पास इस तरह से सीरीज -1 टू पावर zn है, तो भी आप चेक कर लो. सॉरी, zn इधर मल्टीपल पे, तो भी इट इज माइनस, पहले z1 आएगा, फिर z2 आएगा, -z3 आएगा. अब फर्क क्या है, -1 टू पावर n से क्या होगा कि ऑड प्लेसेस पे जो होगी तो उसके साथ माइनस होगा, इवन वाले के साथ प्लस होगा. तो -1 टू पावर n+1 होगा तो z1 -z2 होगा. तो है तो सीरीज अल्टरनेटिंग है ना फिर भी.
साइंस अल्टरनेटिंग हो रहे हैं ना, तो Yes, कोई sir. कोई इशू नहीं होगा उसका उतना। ठीक है, ओके। Yes, sir. डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन? सर अगर हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हो तो उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से क्या उस पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है? देखो देखो देखो, अगर तो सीरीज कन्वर्जेंट है, इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, दो चीजें हैं, मल्टीप्लाइंग बाय एनी कांस्टेंट डज नॉट चेंज कन्वर्जेंस, चेंज कन्वर्जेंस। मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी कि जब आपके पास सीरीज है तो मान लो सी, हर एक टर्म को आप एक्स एन से मल्टीप्लाई करो तो आप सी को आराम से बाहर लिख सकते हो अगर सीरीज कन्वर्जेंट है। और दूसरी बात कि कन्वर्जेंट सीरीज में एडिंग और डिलीटिंग फाइनाइटली मेनी टर्म्स, लेकिन मेनी टर्म्स डज नॉट इफेक्ट द कन्वर्जेंस। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है जी, कि आपके पास अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसमें से आप फाइनाइटली मेनी टर्म्स को डिलीट कर दो तो भी पीछे जो बचेगा दैट विल बी अ कन्वर्जेंट पार्ट। और अगर कुछ आप फाइनाइटली मेनी टर्म्स और ऐड करना चाहते हैं, उसमें 10 टर्म्स और ऐड करना चाहते हैं, 20 टर्म, इवन के इट शुड बी फाइनाइट ओनली, तो फाइनाइट मींस आप बिलियन टर्म्स भी ऐड करें उसमें, तो बिलियन इज अगेन अ फाइनाइट नंबर ना, तो बिलियन यस सर। टर्म्स या ट्रिलियन ट्रिलियन टर्म्स भी ऐड करें तो ट्रिलियन इज आल्सो अ फाइनाइट नंबर, तो ट्रिलियन टर्म्स भी ऐड करें स्टिल सीरीज विल बी अ कन्वर्जेंट। इज इट ओके? यस सर। सो ओके, एनी अदर क्वेश्चन? तो सर डाइवर्जेंस के केस में? देखो डाइवर्जेंस में थोड़ा फर्क पड़ सकता है कुछ जगहों पे, बट नहीं पड़ेगा इतना मोस्टली, क्योंकि जब सीरीज डाइवर्जेंट है तो मल्टीप्लाई करने से उसको उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट उसमें उसमें हम डेफिनेटनेस के साथ ये दो चीजें नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस जो है, कन्वर्जेंस इज अ स्मूथ बिहेवियर, इसमें स्मूथनेस होती है, मतलब इट्स अ नाइस बिहेवियर। कन्वर्जेंस को हम नाइस बिहेवियर मानते हैं सीरीज का, क्योंकि इसके साथ आप सारे कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो डाइवर्जेंस इज अ बिहेवियर जिसके बारे में कुछ भी डेफिनेटनेस नहीं है, वहां केओस होता है। ठीक है, वहां हो सकता है टर्म्स इन्फिनिटी को जा रही हूँ, पार्शियल सम्स अनबाउंडेड हो रहे हैं, ठीक है, वो वहां पर बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे चेक करने के लिए। वहाँ एक ओके एक सर। एक एक आप वहाँ आप क्या कर सकते हैं, वहाँ कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं डाइवर्जेंट सीरीज की, 2-3 एग्जांपल्स ले लो तो उनके साथ ऐसा ऑपरेशंस करने, किसी को मल्टीप्लाई करके देख लो क्या बनता है, अब तो किसी को कुछ और करके देख लो क्या बनता है, ठीक है। ओके सर। बट दिस हैज टू बी विद द कन्वर्जेंट सीरीज, बट अगेन कन्वर्जेंट सीरीज ओनली, ओके। ठीक है, कोई ठीक है फिर, ओके यस सर। ओके देन सी यू टुमारो।